السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب؟ کہاں ہیں مفتی مجید صاحب؟ آپ کون؟ جی آپ کون؟ میں ابو احمد بات کر رہا ہوں۔ میں سمجھا نہیں، کون آپ بات کر رہے ہیں؟ ابو احمد بات کر رہا ہوں، مفتی مجید سے بات تو کرائیں۔ مفتی صاحب کے نمبر پہ کال کریں۔ یہ اس کا نمبر نہیں ہے؟ نہیں انہوں نے ابھی فون کیا ہمیں۔ نہیں، وہ کانفرنس کال تھی۔ کیا کار تھی؟ کانفرنس کال تھی۔ کانفرنس کال تھی؟ جی تو پھر آپ ذمہ دار تو آپ بنتے ہیں نا، کیونکہ کال آپ کے نمبر سے انہوں نے کی ہے۔ چلیں آپ، میں آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں ابھی۔ کر دیں؟ چلیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ برائے مہربانی ہولڈ کیجیے، پلیز ہولڈ آن۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ حضرت مولانا مطیع الرحمان صاحب۔ جی مفتی مجید صاحب پڑھیں صرف صغیر فعل صحیح ثلاثی بروزن فعل یفعل چوں ضرب زدن سنائیں۔ فعل ضرب یضرب۔ جی صرف صغیر فعل صحیح ثلاثی۔ جی ٹھیک ہے۔ جی اب گردانیں سننی ہے مجھ سے؟ جی فعل یفعل۔ یہ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا وذاك مضروبا ما ضرب ما ضرب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب پھر پڑھیں۔ جی غلط پڑھ رہے ہیں۔ ایسا پڑھوں؟ غلط پڑھ رہے ہیں نا۔ اچھا ضرب یضرب ضربا فهو ضارب۔ جب غلطی کروں پھر بتانا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وضرب یضرب ضربا فذاك مضروب۔ اب اپنے فتوی جات کی روشنی میں آپ پر تو کفر کا فتویٰ لاگو ہو چکا ہے۔ ارشاد المفتین کے فتویٰ کے مطابق آپ دوبارہ نکاح کریں، کیونکہ انہوں نے ضربہ پڑھنا کفر لکھا ہے۔ تو آپ اپنے فتوی جات کی روشنی میں آپ دوبارہ کلمہ پڑھیں اور دوبارہ نکاح کا بھی انتظام کریں۔ آپ اپنے فتوی جات کی روشنی میں، آپ کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سنیں، آپ گردان تو پوری کرنے نہیں زارا بنا پڑے نا۔ آپ تو آپ کے اپنے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ایسا پڑھنا تو کفر ہے، تو آپ زارا بنا پڑے، آپ دارا پر پڑھیں۔ دال مفخم سے جس کو رشید گنگوئی نے لکھا ہے۔ کیا پڑھوں؟ جو دال مفخم کے ساتھ رشید گنگوئی نے لکھا ہے اسی سے پڑھے نا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ جی مطلب یہ کفر، یہ اگر دوسری کفر ہے؟ یہ تمہارے اپنے مفتی نے لکھا ہے، اس کے فتوے کی روشنی سب کچھ ہو رہے ہیں، تجدید نکاح بھی کریں، کلمہ بھی پڑھیں۔ جی 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 ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیں یہ جو آپ الزامی طور پر آپ سننے نہیں فعل یفعل تو سنا ہے؟ سنے تو صحیح۔ نہیں پہلے گردان تو سنا ہے پوری۔ اچھا پوری گردان سنا ہے؟ ہاں سنا ہے۔ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب۔ نہیں اس کو تو یار کفر لکھا ہے آپ کے مفتی صاحب نے، آپ پھر دوبارہ کفر کر رہے ہیں۔ نہیں آپ نے فتویٰ کفر لگانا، یہ گردان سننی ہے۔ یہ آپ کے اپنے مفتی نے لکھا ہے، ارشاد مفتی حمید اللہ جان نے لکھا ہے۔ میں ایک فتویٰ آپ کا بھی پیش کرتا ہوں، سنیں۔ نہیں پہلے آپ نے اپنا یار ایمان بچا لیا۔ سنیں پہلے دال مفخم کے ساتھ رشید گنگوئی کہتے اسی سے پڑھے، ضرب یضرب ضربا ایسے پڑھے۔ میں آپ کو سناتا ہوں جناب، اب سن بھی لیں آگے۔ اب سن بھی تو لے نا۔ ہاں سن رہا ہوں، پڑھے۔ سننے کی ہمت بھی تو کرے نا۔ ہاں آپ مجھے پتا ہے کہ ہمیشہ بولتے ہیں سننے کی ہمت۔ وہ تو پہلے آپ کئی دفعہ بات چکے ہیں، میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، کئی دفعہ میں آپ کو کال کر چکا ہوں۔ ایک سنیں وہ تو کئی مرتبہ آپ بات چکے ہیں۔ ہاں جی ہاں سنائیں۔ اچھا آپ سنیں، آپ میرا بھی ایک سوال سنیں نا۔ آپ نے ایک سوال کیا نا۔ نہیں گردان پوری سنا دیں نا، پھر آپ کا سوال کا جواب میں دوں گا۔ ایک منٹ میں سناتا ہوں، گردان میں سناتا ہوں، آپ سے بھی سنتا ہوں۔ سنیں جی یہ بتائیں کہ کیا گردان سنا دی آپ نے؟ گردان سنا دی ہے، صرف صغیر فعل صحیح، یہ تو سنا دیں یار، بعد میں آپ کا سوال میں سنوں گا، جواب میں کی عادت ہے بھاگنا؟ یہ تو مجھے کئی دفعہ پہلے بھاگ چکا ہے یار۔ یہ تو اپنے نمبر سے اس لیے فون نہیں کر رہا، اس کو پتہ ہے کہ میری سوال سنیں گے۔ گردان سنا تو سوال سنیں گے۔ ہاں سنیں گردان سنیں۔ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب۔ پھر یہ آپ کے مفتی حمید اللہ جان اس کو کفر کہتے ہیں، آپ تیسری مرتبہ کفر کر رہے ہیں۔ آپ کر چکے ہیں نا، فتویٰ لگ چکا ہے نا۔ تو آپ تجدید نکاح دوبارہ کلمہ پڑھیں اور دال مفخم کے ساتھ جس کو رشید گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا اس سے پڑھیں آپ۔ ہاں بس وہی پر بات آ گئی نا۔
यार ये अपने आप के उसूल में पेश करूं, अपने उसूलों से आप भाग रहे, अपनी किताबों से भाग रहे, कम से कम अपने उसूल से भाग रहे। के कुफर का मसला आपकी किताबों के अंदर भी मौजूद है, मैं आपको दिखा दूंगा। रशीद गंगोई यार, रशीद गंगोई कहता है दाले मुफख्खम, तो उसे दाले मुफख्खम के साथ पढ़े। हाँ जी सुने मैं अर्ज करता हूँ जी जी, अगर ये मुफ्ती मुजैद मैं आपसे सवाल सही सुने जी। हाँ जी पर वही है ना, ये आपकी आदत शरीफा है जी, सुना है ना, बोलते हैं आप ऐसे करें, तय मुकर्रर करें, आप भी बोले मैं भी बोलता हूँ, ठीक है? नहीं मैं आपको कह रहा हूँ कि दाले मुफख्खम रशीद गंगोई के ज़ारा पढ़ना को आपके मुफ्ती कहते हैं कुफर है, आप चौथी मर्तबा कुफर कर रहे हैं। तो बार बार आपको कुफर में सुनता रहूं, कौन सा कुफर है? कौन सा कुफर है? ये तो आप ये अपने मुफ्ती से आप पूछ सकते हैं कि कौन सा कुफर है। वही है ना, हदीस में आता है कि अब मैं आपसे कहता हूँ ना, सरफे सगीर सुने, सरफे सगीर दरबा यदरिबु दरबन फहुव दरिबुन, ये सरफे सगीर सुने जी। हदीस नहीं सुनेंगे आप? नहीं, आपको सरफे सगीर आती नहीं है, आप कहते हैं हदीस सुनाता हूँ, आपकी लियाकत नहीं है। बात आप सुनते नहीं है, आप में ये है कि आपने बात सुननी नहीं है। अच्छा सुनाए, मैं कह रहा हूँ बुखारी की हदीस है, बाप को कुरान नसीर फेल सही सुलासी सुनाए, फाल या फाइलू बात आ गई यार, फाल या फाइलू तो सुनाए ना, बात सुननी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ बुखारी की हदीस है, मैंने बुखारी का तो मुतालबा भी नहीं किया, मेरा जो मुतालबा है वो तो पूरा करें यार। मैं कह रहा हूँ कि सरफे सगीर सुनाए, मैंने ये नहीं कहा कि बुखारी की हदीस मुझे सुनाए। नहीं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना, आपने कहा कुफर है तो वो उस कुफर की तोजी कर रहा हूँ ना, कौन सा कुफर है? आप पहले सरफे सगीर सुनाए ना दाले मुफख्खम के साथ, फिर अगली बात आप जो कह रहे कलमा पढ़े, आप जो कह रहे कलमा पढ़े, इसका मतलब आप इसको कुफर एतकादी समझे? नहीं, ये तो बाद का मसला है ना, पहले दाले मुफख्खम के साथ सरफे सगीर सुनाए। आप सुन तो लेना, आप दरबन जी पढ़े, इमाम कौल के मुताबिक ये यार आप फतवा जहाद की रोशनी में चौथी मर्तबा कुफर कर रहे हैं, लेकिन आपको इससे शर्म भी नहीं आ रही। आप बोलो बात और रशीद गंगोई इसको कहता है हिम्मत तो करे ना, दाले मुफख्खम सुनने की हिम्मत तो मुझे कई साल पहले हो गए, मैं आपको कई मर्तबा अपने नंबर से कॉल कर चुका हूँ, आप ना इससे जैसे हिमार की तरह आप भाग चुके हैं, हिमार की तरह, पता है आपको? अच्छा सुने मसला तो और आप औरों के नंबर से फोन करते हैं, आपकी इल्मी लियाकत ये है कि सरफे सगीर फेल सही ये आपको गिरदान नहीं आती, और आप बने करते हैं मुनाजिर, शर्म आपको आती नहीं। आपने सुननी भी है कि सिर्फ आपने बोलना है? जी सरफे सगीर सुना है जी। अच्छा, मैं एक मसला पूछ सकता हूँ आपसे? नहीं, सरफे सगीर तुमने सुना दी है, साल के लिए जरूरी है कि वो पहले सही सुना है फिर मसला? तुम्हारी मैं इल्मी लियाकत चेक करता हूँ, तुम जो बनात पति मुनाजिर बने फिरते हो, तो कम से कम तुम्हारी मुझे उसकी तशरीह कर। आप अपने मुताबिक की रोशनी में मुफ्ती हमीदुल्लाह जान के फतवे के मुताबिक तजदीद निकाह करें, कलमे का इंतजाम करें, ठीक है? और आए मेरे पास, आप सरफ पढ़ें, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो फिर उसके बाद ये मुनाजरे और फोन वगैरह, क्योंकि आप कई मरतबा भाग चुके, मैंने आपको मैंने 3 मरतबा दावत दी थी कि आमने सामने बैठते, 3 मरतबा आपको दावत दी थी। ये बरेलवी था पहले, अभी नया मुसलमान हुआ है, ये कहते हैं हमारे मुसलमान से बात करें। मौलाना जीशान साहब देख लिया आपने? मुझे पता है यार, चेहरा मुझे पता है जी। तीन मरतबा हिम्मत नहीं कि आप रजा पर एक इतराज सुन के जवाब दे सके, हजरत की लियाकत, और तुमने सरफे सगीर सुना दी है, की लियाकत क्या होगी? बस यही ना, सरफे सगीर सुनता रहना। मैं ये पूछता हूँ कि ये बताएं कि क्या सरफे सगीर पहली मर्तबा तुमने पढ़ा गया, वो भी जहल पढ़ी है, गलत पढ़ी है, जहल तो इतना हिमार इंसान है, और जो सरफे सगीर आती नहीं है और बात करता है मुझसे शर्म, मगर तुम्हें आती भी नहीं है। आम रजा को सरफे सगीर आती थी? मेरे साथ बात करने के लिए पहले वुजू कर, शर्म नहीं आती तुम्हें? वाह जी वाह, तो ये देखना, ये इनकी तमीज का तरीका कार है। पहले मुझसे बात करने के लिए वुजू कर, तुझे तो वुजू भी नहीं है। एक मसला आप बताएंगे? नहीं, तुम कहो हाँ मसला मैं तुम्हें बताता हूँ, यार मुझे ऐसा बात सुने, मुझे ऐसा मैं बताता हूँ आपको, बात सुने जी। मैंने आपको 3 मरतबा पहले कॉल की थी क्या, हाँ या ना? मैं कौन सा इनकार किया कॉल न करने का? कॉल की थी ना, एक मसला उसी की तरफ आ रहा हूँ ना। मैंने पहले आपको कॉल की थी या नहीं की थी अपने नंबर से? जी की थी। आमने सामने बैठने की आपको दावत दी थी या नहीं दी थी?
तो मैंने कहा था ना कि आप लाहौर फलां जगह पे आ जाएं, आपके जामे में आ रहा हूँ, आप आए थे फिर वहाँ? यार ऐसे आ जाऊं क्या? मुनाजरा ऐसे होता है कि आ जाओ? अच्छा, अब आप मुनाजरा की तारीख से मुतय्यन करना चाहते हैं? पूरी बात तो सुने ना, मैंने आपको नहीं, मैं आपको फजूल देखे ना, आप असल बात से भागना चाहते हैं। जो जिस मकसद के लिए मैंने फोन किया है ना, बात सुने, सुन तो लें बात, सुन नहीं, मकसद ये था तक मैंने आपको कहा कि आप इल्मी लिया कर चेक करते हो, सरफे सगीर फेल सही पर वजन ये सुना दें, आप सुना दें, आप इल्मी लिया कर चेक करते हो। और पहले आप कम अज कम 3 मरतबा मुझसे भाग चुके हैं, मैंने आपको फोन भी किया था, मैंने आपको कहा था आमने सामने बैठ जाते हैं और इस मसले पर डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन तुम अपने वडेरों की तरह कई मरतबा भाग चुके हो और शर्म मगर तुम्हें आती भी नहीं है, और तुम्हारी इल्मी लियाकत ये है कि सरफे सगीर भी तुम्हें नहीं आती। ये सरफे सगीर है, ये मुजाहिद है। हजरत यही हाल इनके आला हजरत का था कि वो सुनता कुछ नहीं था, बस बोलता ही जाता था। आला हजरत शाही इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो आप लोगों के साथ किया, वो तो क़यामत तक नौजवी और गंगोई उनकी हड्डियों से भी धुआं निकल रहा है अभी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के फतवे की वजह से। आपकी तो दुबक से भी निकल रहा है। ये आप इल्मी लियाकत यार कुछ खुदा को खौफ करें, पहले सर पढ़ें, फिर आइए मौलाना मोहम्मद मतीउल्लाह जलाली सियालवी से बात करें, और पहले वुजू भी करना, वुजू लाजमी है मेरे साथ बात करने के लिए। निकल रहा है, समझ आ रही है? और हिमार की तरह नो है ना, भागने की तरह मुजाहिद है, ये बहुत देने वाले की यार आपकी मेहरबानी सर में सही है, देने वाले की खुद दुबन से धुआं निकल रहा है। दाले मुफखम के साथ सर पे सगीर मुजाहिद साहब, यार सर पे सगीर नहीं आती तो मैं आपको सुना देता हूँ, मुझे कहें। आप सुने, मैं अर्ज करता हूँ। हाँ, एक सवाल का जवाब देंगे? माशाल्लाह, सर पे सगीर तो सुना यार, जवाब दूंगा, लाजमी दूंगा। जो आपसे लोग मसले पूछने आते हैं, आपसे पहले सर पे सगीर सुनते हैं। तुम पहले कह दो कि मैं जाहिल कट्टा हूँ, बिल्कुल कह दो अपनी जुबान से, जवाब देंगे पहले, ठीक है, कह दो इसी जिस तरह मैं कह रहा हूँ। वादा करें, मेरे 10 इतराफ के जवाब देंगे आप? हाँ बिल्कुल, आप पहले कहें कि मैं जाहिल कट्टा हूँ और मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मतीउल्लाह सियालवी जलाली मेरे सवाल का जवाब दे, पहले कहो ऐसे। अगर ना दिया तो फिर आप कहो कि मैं दिलो जान से कहता हूँ। जो मैंने कहा पहले, वो तो सवाल जो पूछना चाहते हो तो पहले कम से कम कहो कि मैं खुद जाहिल कट्टा हूँ। जो साहिल होता है वो साहिल जाहिल होता है। तो सर पे सगीर सुना है, जाहिल होता है। जो हशमत अली कादरी साहब ने जो नईमुद्दीन मुरादाबादी को सवाल की सूरत में कहा था, तो वो जाहिल थी क्या? नहीं, फ़ाइल यफ़इल ये सुना दिया तुमने, दाले मुफखम के साथ रहीस का कोई कहता है, और हमीदुल्लाह जान का ऊपर का फतवा तुम्हारी गर्दन पर खड़ा है। हमीदुल्लाह जान का हिम्मत नहीं है, तुम्हारी गर्दन पर खड़ा, वो भी आप नहीं उठा सकते। इतनी हिम्मत नहीं है आप में, एतराज सुनने की भी हिम्मत नहीं है कि सर पे सगीर तो सुना यार, मुझे कहें मैं आपको सुना देता हूँ। सर पे सगीर सुनाए जी, शाबाश माशाअल्लाह, ये मुझे साहब आप सुनाए। अच्छा मैं सुनाऊं? दाजदू से सुनाए, दाजदू, अच्छा दुआन वदा वतन, ये सुनाए। अच्छा तुम पहले कह दो कि मुफ्ती मोहम्मद मतीउल्लाह जलाली सियालवी साहब ने मुझे कहा सर पे सगीर सुनाओ, और मुझे सर पे सगीर नहीं आती, फिर मैं सुनाता हूँ। अपने मुंह में दाजदू की खुदा रमा जरमी से सुनाओ। यार कम से कम तुम ये तो कहो कि मुझे नहीं आती, मैं सुनाओ रमा जरमी। नहीं, तुम एक मरतबा कह दो कि मुझे सर पे सगीर नहीं आती और मैं आज इकरार करूं, फिर मैं आपको सुनाता हूँ। ये वाह जी वाह, मैं कह रहा हूँ आप रमा यरमी से सुना दो, दाजदू से सुना दो। पहले सवाल मेरा था, पहला सवाल मेरा था, तुमने पढ़ा ज़ाराबा, तुमने पढ़ा ज़ाराबा यज़रिबु, जब तुमसे मार पड़ी ना तुम्हें हमीदुल्लाह जान के फतवे से,